My voice is audible? So audible. Okay. सो अभी तक अपन ने इसमें जो है लास्ट 2 क्लास में एक तो एसरेम डीरेम वी कंप्लीटेड ऑफ दिस यूनिट एंड सेकेंडली बेसिक डायनेमिक सीमॉस सर्किट का मैंने मैरिट्स डीमेरिट्स एंड फंक्शनिंग बताई थी. हाउ द थिंग्स गो वंस अगेन एज वी आर स्टार्टिंग, सो आई एम जस्ट within a 2 minutes I am just flashbacking you. In this particular unit SRAM DRAM कर लिया था अपन ने, और अब ये जो क्लॉक सीमॉस डोमिनो नोरा पी ये सारा अपने को करना है. इसमें इंट्रोडक्शन में यही था कि जैसे डायनेमिक की हम बात करते हैं तो दैट इज अ टेम्पररी ट्रांजिएंट आउटपुट, एंड दिस डायनेमिक आउट ट्रांजिएंट की हम जब बात करते हैं तो हम उसमें प्रीचार्ज मीन्स इन दैट टाइम क्लॉक इज गोइंग टू चार्ज एंड इवलेट मीन्स क्लॉक इज गोइंग टू डिस्चार्ज. दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू बी देयर. मतलब सीमॉस का जो सर्किट है उसमें बीच में तुम्हारा एनमॉस या पीमॉस टाइप से एरे आ जाता है. Recharge means your capacitor is on. Whenever your capacitor is on, PMOS on रहता है और NMOS off रहता है. And when capacitor is discharged, तो it discharge through the NMOS on. उस टाइम PMOS off हो जाएगा और NMOS on. ठीक है, ये सारा मैंने थोड़ा बहुत बताया था. इसमें हमें जो स्टार्ट करना है ठीक है, recharge evolution. So लिख लो पहले. Basically this is the first and very basic dynamic CMOS circuitry that allows the significant reduction in the number of transistor that is used to implement, and the circuit operation जो है that is first pre-charge होगा means capacitor is going to charge and eventually the output level according to the applied input. ठीक है. When you write down please, actually मैं मैसेज नहीं देख रही हूँ तो मनदीप, नेहा, वंदना, इनमें से कोई भी एक मुझे जब तुम लिख लो सो प्लीज लेट मी नो. ठीक है. नेहा तुम आ नहीं रही हो क्या बेटा? तुम यही हो ना नेहा दाकर? और अगर तुम हो तो भाई जो आ रही है गर्ल्स वो मेरे से Xilinx का सॉफ्टवेयर ले जाओ तो तुम लोग प्रोग्राम्स कर सकते हो. नेहा तुम एक दिन आई भी थी बट उस दिन मुझे बाहर जाना था, बट अगर तुम आ जाओ तो ले जाना Xilinx सॉफ्टवेयर. इट इज इन माई लैपटॉप. ठीक है. नाउ प्रीचार्ज इवोल्यूशन में ये मेन चीज है. प्रीचार्ज फेज जो रहता है दैट इज क्लॉक इज डाउन टर्निंग, P means pre-charge transistor and pull down transistor is off and output capacitance EN charges to VDD. Evolution phase में clock goes high turning to N
and turn off the P. The input is such that Z is true and the capacitance is started to discharge. तुम ये लिख लो पहले, फिर इसका सर्किट जब आएगा it is going to be clear. And this concept is going to be common for domino, Nora and all, but the terminology and circuitry is going to be a bit different. सिंपल इसमें कुछ भी नहीं है. प्रीचार्ज मीन्स एंड प्रीचार्ज ट्रांजिस्टर इज गोइंग टू देयर एंड पी के थ्रू कैपेसिटर जो है चार्ज होगा थ्रू वीडीडी और इस टाइम एनमॉस ऑफ रहेगा, पीमॉस ऑन रहेगा. Here the capacitance is going to discharge. That is a turning point when my N is on and P is off. Okay. Fine. So यही चीज यहाँ पे लिखिए. Instead of using static invert to ensure that 0 to 1 transitions occur during pre-charge, we can exploit the duality between phi block and phi this. Pre-charge output value जो रहती है that is phi n block equals 1, which is the correct value for the input of phi p block. All PMOS transistors जो रहते हैं that is of the pull-up network turned off, so an erroneous discharge at the onset of the evolution phase is prevented. In a similar way, on phi n block can follow phi p block without any problem. So that is a pre-charge value of the input equals 0. To make the evaluation and pre-charge times, okay. And in similar way, phi n block can follow a phi p block without any problem. To make the evaluation and pre-charge times of phi p and phi n block coincident, one has to clock the phi p block with an inverted clock. ये तो नॉर्मल है, कुछ नहीं. ये मेन सर्किट है, ये तुम बना. दिस इज अ बेसिक प्रीचार्ज इवोल्यूशन. इसकी वर्किंग अपन ने ये देखी. ये कैपेसिटर है जो कि जब व्हेन पीमॉस इज यूज्ड टू बी ऑन तब ये चार्ज होता है एंड जब ये ऑफ रहेगा तब ये डिस्चार्ज होता है. ये हमारा पुल डाउन ट्रांजिस्टर है, ये पुल अप ट्रांजिस्टर. ठीक है, तो ये इनपुट्स लगा दिए. दिस इज अरे, इट कैन बी परफॉर्म एंड और व्हाटएवर गेट वी. सो दिस इज अ phi n नेटवर्क. अरे एक अपन ने phi p ले लिया, तो यहाँ हमारे सारे nmoses कनेक्टेड है और यहाँ अरे ऑफ pmoses है. फाइन. नाउ मेक दिस सर्किट. और अगर हमें अरे ऑफ प्रीचार्ज इवोल्यूशन लॉजिक चाहिए तो हम इसी तरह से कनेक्ट करते जाते हैं. बनाओ जल्दी, एक और अपन कर लेंगे फिर से.
Have you completed, beta? Yes, ma'am. ओके अब ये चीज अपन बता चुके हैं कि क्लॉक इज डाउन टर्निंग ऑन द पी प्रीचार्ज ट्रांजिस्टर एंड पुल डाउन ट्रांजिस्टर इज ऑफ. सो आउटपुट कैपेसिटेंस CN चार्जेस टू P. ये अपन कर चुके हैं. दैट इज अ सिमिलर टर्मिनोलॉजी. एंड ये जो है ये स्टैंडर्ड सर्किट है. अगर तुम इस तरह से भी बनाते हो एंड वन कैपेसिटर इज गोइंग टू एडिट, दैट इज ऑल्सो फाइन. और ये जो फाई रहता है, ये बेसिकली फाई इज नथिंग बट योर क्लॉक. सो पुल एंड नेटवर्क में हम क्लॉक दे रहे हैं और यहाँ क्लॉक का बार आ रहा है. ठीक है, दिस फाई इज नथिंग बट माई क्लॉक. फाइन, दैट्स इट. अगर मैं मैरिट्स की बात करती हूँ प्रीचार्ज रिलेशंस की, सो लो स्टैटिक पावर डिसिपेशन है इसका. इनपुट कैपेसिटेंस जो है सेम एज द सूडो एनमॉस. करंट पाथ जो है टू द प्लेस कंस्ट्रेन ऑन द डिवाइस and N+2 transistors to implement the NF. तो ये कुछ merit demerit, so you will get very fast. Demerits की जहां तक बात आती है तो maximum clock rate determine होता है by circuit delay. Input can only change during precharge stage. ठीक है, precharge की टाइम में हम इनपुट को चेंज कर सकते हैं whether it is high clock or low clock. And minimum clock rate जो है that is going to determine by the leakage in the capacitor. So pull down time is degraded due to the series active switch. ये तो तुम्हें मिल जाएंगे. Actually, basically, dynamic power use होती है इसमें. इसकी जो demerits है, like pull down time is degraded due to series activity switch to 0, minimum clock rate, maximum clock rate. ये मतलब जनरली अगर ये आता है प्रीचार्ज रिलेशन, सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू मेक द डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग. और ये वाली जो चीज अपन ने करी है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो. व्हेन क्लॉक इज 0, प्रीचार्ज फेज रहता है. PMOS पुल अप प्रीचार्जेस आउटपुट टू VDD एंड इन दिस टाइम कैपेसिटर चार्जेस. व्हेन क्लॉक इज 1, इवलेट फेज यूज्ड टू बी इग्नाइट एंड NMOS जो है पुल डाउन नेटवर्क में डिस्चार्ज आउटपुट टू दी VSS. Conversely, we can say NMOS pull down is pre-charged to VSS and this is going to VDD. Fine. And when the pre-charge phase is there, clock हमारा capacitor जो है वो charge होता है और evolate में ये discharge होता है. ठीक है. Clock CMOS. ठीक है. तो इसको हम clock CMOS बोलें या C² MOS भी बोलें. Both are the same circuitry. तो clock CMOS is another terminology which we use. तो क्लॉक CMOS जो है ये सेकेंड है जो अपन पढ़ रहे हैं. C² MOS जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? स्टैटिक लॉजिक सर्किट विथ ट्राई स्टेट आउटपुट नेटवर्क. So it is composed of static logic with a tri-state output network that is made up of FETs M1 and M2 that is controlled by phi and phi. ठीक है. तो C² MOS जो है ये इनसे बनता है. phi और phi बार जो है वो इसमें यूज होता है. पहले तुम सर्किट बनाओ. आई थिंक वेट देन विल एक्सप्लेन. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉक्ड CMOS नेटवर्क. इसमें क्या हुआ है, जो N और P FETs जो तुम्हारे इन बिटवीन थे वो अब ऊपर नीचे हो गए हैं और N और PMOS यहाँ आ गया है. तो NMOS में phi दे रहे हैं, PMOS में phi बार दे रहे हैं. ऊपर P FETs नेटवर्क होगा, यहाँ N FETs होगा. और phi और phi बार जो है VDD के रिस्पेक्ट में वो इस तरह से बना लो. उसको सर्किट को बनाओ. देन राइट डाउन द डेफिनेशन एंड इट्स वर्क. दिस इज अनदर टर्मिनोलॉजी. एक्चुअली डायनेमिक CMOS में तुम्हारा जो MOS है या तो उसके इन बिटवीन तुम्हारा N या PMOS array लगेगा या वो arrays के बीच में MOS लगेगा.
When you complete, please inform better. ये सारे ही लॉजिक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न. Have you completed? Yes, Vandana, Mandeep. Yes, ma'am. See, now you made the circuit. Now things will be clear. तो next उसमें भी अपन पहले सर्किट बनाएंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे, है ना? अब इससे तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा. अब लिखो, इट इज कंपोज ऑफ स्टैटिक लॉजिक सर्किट ट्राई स्टेट आउटपुट डेटा like made up of FETs M1 and M2 that is controlled by phi and phi bar. ठीक है? लिख लो ये, या स्क्रीनशॉट ले लो अब. हाँ, बस मेरी क्लास 5 मिनट की है. Completed बेटा. अब ये लिख दो, स्टैटिक CMOS और सी स्क्वायर मॉस कंसेप्ट जो रहता है, सी स्क्वायर मॉस कंसेप्ट इज नॉन ओवरलैपिंग क्लॉक बट इन अ फिजिकल सिग्नल दे ओवरलैप स्लाइटली इन अ ट्रांजिशन. स्टैटिक CMOS की जहां तक हम बात करते हैं, तो आउटपुट ऑफ स्टैटिक जो रहता है, that is so long as the input value of the valid and the circuit is going to be stabilized.
अब now it's working. Clock CMOS. When phi is 0, M1 and M2 both are active. Why both are active? See, यहाँ हम जब 0 दे रहे हैं दोनों ही एक्टिव होंगे and become standard static logic gate. And when phi is 1, both M1 and M2 are cut off. So that output is going to be this. ये लिखे. फिर इसके फीचर्स अपन डिस्कस करेंगे एंड लीकेज इन क्लॉक सीमॉस से आई विल डिस्कस टुमारो. ठीक है, लीकेज जो क्लॉक सीमॉस में होता है कैसे क्या है ये अपन कल करेंगे. ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हें थ्योरेटिकली बताऊंगी इसमें. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज डोमिनो. ये लिखिए, मतलब फाई 0 रहेगा तब क्या वर्किंग होगी और फाई 1 रहेगा तब क्या वर्किंग होगी. ठीक है, फाई 0 रहेगा तो M1 एंड M2 जो है एक्टिव रहेंगे और फाई 1 जो रहेगा तब M1 और M2 जो रहेंगे वो कट ऑफ रहेंगे. ठीक है, इसके फीचर्स में सीरीज क्लॉकिंग ट्रांजिस्टर कैन बी एट द सेंटर और एट अ पावर रेल. इट यूज इंटरफेस ऑफ एनपी डोमिनो, यूज इनकॉर्पोरेटेड लेजर्स, स्लीव रेट्स, slower रहता है due to clocking, same input capacitance as the complementary CMOS logic that is going to be there. Leakage in a clock CMOS ये ज़्यादा important है. Charge leakage is used to be there in a clock CMOS circuitry and that is output node cannot hold the charge on the Vout very well. And this places a lower limit on the allowable clock frequency. So if the voltage is applied to the drain or source, the small leakage current flow into the output. लीकेज की कैसे पॉसिबिलिटी हो रही है? सी, ये मॉस के एक पी अरे यहाँ है, एन अरे यहाँ. वट एवर ऑपरेशन इज गोइंग टू बी टेक प्लेस, तो उसमें मतलब आउटपुट जो नोड है वो दैट कैन नॉट बी होल्ड ऑन अ चार्ज वी आउट, सो दैट इज गोइंग टू बी प्लेस. एंड स्मॉल लीकेज करंट फ्लो जो रहता है वो रहता है ये current off to the capacitor by IO. That one reason is due to the required bulk connection. ठीक है, ये देखो इस तरह से सर्किटरी रहती है. इसमें तुम एक एग्जांपल लिख लो. एग्जाम्पल ऑफ सी स्क्वायर मॉस लॉजिक गेट में नैंड और नॉर बनाया है. वो थ्योरी तो तुम्हें मिल जाएगी, ये बनाना इंपॉर्टेंट है. अब नाउ सी इन दिस आई जस्ट वांट टू शो यू. ये तुम्हारा वो 5 और 5 बार आ गया. ये तुम्हारा पी मॉस अरे है जो ऊपर लिखा था ना सी. इसमें सर्किट बनाने भी आते हैं और ये तुम्हारा जो है एन मॉस है. वो सेम ही चीज है. नैंड में क्या होता है, दोनों सीरीज में लगते हैं, नॉर में दोनों पैरेलल में लगते हैं. वो लगा दी और बीच में ये 5 और 5 बार आ गया. So what you are getting here is A dot B का बार. Here is the also the same. NOR में just उल्टा हो जाए. Is it clear? Please make the both the circuit. लिखो example of clocked MOS logic gate so that in future भी अगर तुम्हें आता है तो तुम इसको बना पाओगे. ठीक है, parallelly you give your attendance also. Yes, Mandeep, Vandana. Present, ma'am. कुणाल लेफ्ट हो गया क्या? कोई बात नहीं. ठीक है, इसका अदर एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी ये 2 लिख बनाना. तो आज अपन ने प्रीचार्ज इवोल्यूशन पूरा पढ़ा और क्लॉक्ड सीमॉस मैंने तुम्हें सिखाया है. इसमें लॉजिक गेट्स बनाने को भी आए तो तुम्हें इस तरह से बनाना. स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो बेटा. ठीक है, सी यू टुमारो. अगर एग्जाम ड्यूटी नहीं हुई तो क्लास रहेगी बेटा. ठीक है.